Hello everyone, a warm welcome to all at our YouTube channel CS Ansar. This is Nandita Nangia from CS Ansar and today we are going to discuss about the audit or verification of deposits. So for that, I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all, sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CS Ansar and thank you very much for giving your valuable time to us. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CSNSR and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So sir, now it's the time of bank branch audit and हमने audit of advances पे बहुत ज़्यादा discussion किया है. So now जो messages and calls आ रही हैं, this is about that how to verify deposits. के उसका procedure क्या है? Can you please guide us on the same? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on a different topic. And in our last video, I think it was with you, and I promised you that on daily basis we will bring and record some new videos on different topics. And today we will discuss on the audit verification of deposits, because now this is the March and April month, this is the bank branch audit time. Everybody is waiting for the allotment of the bank branch audit. And even not only in the statutory audit, even at the time of concurrent audit, this deposits verification or the audit of deposit, it's very important. Because even in at the time of statutory audit, we don't have sufficient time. So mostly we people are busy into advances and the verification, and then the checking of the NPS. But sometimes somewhere we ignore the deposits. But deposits is also very important part. And even we have to report into the LAFAR, and in deposits we have to check about the even revenue leakage. Even the revenue leakage, income leakage is very important this one topic. And we'll try to bring this one, record a video on this topic also. So today we will discuss about the audit or the verification of the deposits. So let me show you through the PPT. I think now it's visible. So audit verification of deposits in bank branch audit, either it's the statutory audit or into the concurrent audit. Yes, in concurrent audit you have to go for the 100% checking, कि आपको 100% जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसको चेक करना है एवरी मंथ. एंड देन इनटू द स्टैट्यूटरी ऑडिट यू कैन गो फॉर द टेस्ट चेक. उसमें आप टेस्ट चेक कर सकते हो. कैसे करना है दैट वी विल डिस्कस. एंड बिफोर दैट, one disclaimer is there: all these are my personal views and can't be constitute the views of the ICI, CSNSR, or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also go through the ICI guidance note, RBI master circular, notification, bank policy, etc. So regarding the deposits banks, ये तो we people, uh, everybody knows about कि what's the business of the bank: to accept the deposits and give the loans. So deposits also a very important part from the point of view of the bank. So deposits में either it can be the saving account or the current account, term deposit account, then recurring deposit account, FC and NRE. And एक ये जो लेटेस्ट सर्कुलर था in 2022 April 19 regarding the opening of current accounts and CCOD accounts, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. That's very important from the point of view even for the current this one statutory audit and also for the concurrent audit. So I told you at the time of concurrent audit you have to go for the detailed checking. It's saving account में, current account में, and into the statutory audit you can go for the test check. तो डिपॉजिट्स में जब हम स्टैच्यूटरी ऑडिट करेंगे तो वी हैव टू सी कितने अकाउंट न्यू ओपन हुए हैं या ओल्ड कितने हैं, ऑपरेशंस, इंटरेस्ट, टीडीएस, डोरमेंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द सेविंग अकाउंट.
तो अभी लाइक यू हैव द टाइम, तो यू कैन चेक into the bank. जैसे आपको लगता है if you are the auditors of the State Bank of India, the PNB, then you can visit the website of the State Bank of India and the PNB. आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप के सेविंग अकाउंट बैंक्स आर ऑफर्ड. तो यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर कि किस टाइप के आप सेविंग अकाउंट, जैसे आजकल तो पहले तो खाली सेविंग अकाउंट होते थे, आजकल सेविंग अकाउंट प्लस प्रो पत्नी कितने टाइम्स के, कि इतना बैलेंस रखना है, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर जब आप ऑडिट करोगे, इवन एट द टाइम ऑफ कंकरेंट ऑडिट आल्सो, कि डिटेल्स कि क्या कौन कौन से अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, क्या उसका प्रोसेस है. एंड देन आस्क फॉर द लिस्ट कि जितने इस एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑडिट कि आपने कितने अकाउंट्स ओपन करे ड्यूरिंग दिस पीरियड और कितने क्लोज हुए. एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द कंकरेंट ऑडिट, देन आल्सो यू कैन आस्क फॉर द लिस्ट कि मंथली वाइज आप चेक कर सकते हो कि कितने कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं. उसमें तो कंकरेंट में तो आप डेली बेसिस पे जैसे भी आप विजिट करोगे, यू कैन चेक द डिटेल्स. एंड देन आफ्टर दैट ऑन स्टैच्यू ऑडिट कंकरेंट में, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कंकरेंट में आपको 100% चेकिंग करनी है. तो स्टैट ऑडिट में यू कैन गो फॉर द सैंपल कि आपने लिस्ट ले ली, उसमें से कुछ सैंपल उठा लिए कि आपको पता है कि दीज अकाउंट 100 150 200 500 जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए या 1000, जो वट एवर इट मे बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट आपके. तो यू हैव टू चेक फर्स्ट आपको केवाईसी कि क्या बैंक की पॉलिसीज हैं, आरबीआई का सर्कुलर क्या है, आपको केवाईसी है, आपको उसको चेक करने हैं. तो दिस यू कैन असाइन द ड्यूटी टू योर आर्टिकल्स या जो आपके पेड असिस्टेंट उसको असाइन कर सकते हो. एंड देन यू हैव टू चेक द कस्टमर डाटा कि वेदर द प्रॉपर डाटा, टेस्ट बेसिस पे आपको चेक करना है. बट कंकरेंट में अगेन आई एम सेइंग 100% आप फुलफिल्ड है पूरी डिटेल्स उसमें मास्टर डाटा में या नहीं है. एंड देन इट्स द ड्यूटी ऑफ द बैंक मैनेजर, जो न्यू अकाउंट्स हैं उसके ऊपर वो पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं कि वेदर उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही है एएमएल या पीएमएल के अंदर. दैट यू हैव टू चेक आल्सो टेस्ट बेसिस पे. और आल्सो कि कोई अनयूजुअल ट्रेंड, एकदम से किसी मंथ में ये इतने सारे करंट अकाउंट्स ओपन हो गए या सॉरी सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गए या एकदम से क्लोज्ड हो गए, तो दैट यू हैव टू चेक. एंड देन एट द एंड ऑफ ईयर, जैसे मार्च मंथ है, मार्च मंथ में आपको चेक करना है कि कोई बहुत ज्यादा लार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं या लार्ज विड्रॉ हो रहे हैं अप्रैल के मंथ में. दैट आल्सो यू हैव टू चेक. एंड देन जो 10 लाख से अबोव है आपकी कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट्स है, दैट बैंक उसको रिपोर्ट कर रहा है रीजनल ऑफिस में. एंड देन डेबिट बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको चेक करना है जो जितने भी डेबिट बैलेंस हैं आपके सेविंग अकाउंट्स में, उसको जो डेबिट बैलेंस है वो आपको नेट ऑफ नहीं करने. इनफैक्ट आपको अलग से उसको एडवांसेस में दिखाना है. नेट ऑफ नहीं करना कि आपकी जैसे 100 अकाउंट्स आपके उसमें क्रेडिट बैलेंस है, एक डेबिट है तो आपने 99, नो, आपको जितने भी आपके डेबिट बैलेंस है उसको आपने नेट ऑफ करना है. एंड अगर उसमें 90 डेज से अबोव डेबिट बैलेंस है उसकी डिटेल चेकिंग करके देन यू कैन गो फॉर द एनपीए. फिर उसके बाद देन यू हैव टू चेक फॉर द like checkbook charges, stop payment charges, चेक बाउंस चार्जेस, मतलब काफी सारे चार्जेस होते हैं सेविंग बैंक में, जैसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस. उसके ऊपर भी आरबीआई से सर्कुलर है, भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आरबीआई ने ये मेंशन किया है कि आपने अगर कोई मिनिमम बैलेंस, इवन आपको लफार में भी रिपोर्ट करना है कि मिनिमम बैलेंस अगर कस्टमर मेंटेन नहीं करना तो उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको नोटिस 30 डेज का भेजा ही नहीं भेजा, वो कितना चार्ज कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली. फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम बैलेंस आपका 10,000 है, किसी कस्टमर ने 5,000 मेंटेन करा है, तो आपको पूरा नहीं चार्ज करना, आपको प्रोपोर्शनेटली उसके ऊपर चार्जेस लगाने हैं. दैट यू हैव टू सी. देन करंट अकाउंट, तो जो करंट अकाउंट है, सेविंग तो मैंने को बता दिया आपको, कस्टमर जो इंडिविजुअली अपने अकाउंट्स वगैरह ओपन करते हैं फॉर देयर सेविंग्स वगैरह, उसमें कुछ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. बट करंट अकाउंट इज बेसिकली फॉर द बिजनेस मैन एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और द सेविंग. तो वो बेसिकली इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करते. इनफैक्ट करंट अकाउंट पे तो काफी सारे चार्जेस बैंक लेवी करता है, जैसे सर्विस चार्जेस, लेजर पेजेस चार्जेस, एसएमएस फैसिलिटी चार्जेस, काफी सारे चार्जेस हैं. तो करंट अकाउंट के लिए फर्स्ट आई टोल्ड यू जो सर्कुलर है, इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट सर्कुलर आया था फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट सीसीओडी अकाउंट. आपको अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है कि किसी और बैंक अकाउंट में कितना एक्सपोजर्स है, उसके बिहाफ पे यू हैव टू चेक. एंड देन
किस किस टाइप के आप करंट अकाउंट बैंक ऑफर कर रहे हैं, आप उसकी डिटेल चेक करिए, मैनेजर से पूछिए क्या प्रोसेस है, देन कितने करंट अकाउंट्स ओपन करें आपने ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट। उसमें कंकरेंट ऑडिट में तो डिटेल वही हर मंथ आपको चेक करनी है, रिपोर्ट में भी मेंशन करना है, बट स्टैट्यूटरी ऑडिट में टेस्ट चेक बेसिस पे। देन केवाईसी नॉर्म्स, आपको केवाईसी नॉर्म्स चेक करने हैं, सेम थिंग कस्टमर का डाटा फीड हुआ है करेक्टली मास्टर कंट्रोल डाटा में या नहीं। देन अनयूजुअल ट्रेंड कि बहुत ज्यादा कोई अकाउंट्स ओपन हो गए हो किसी मंथ में, करंट अकाउंट, या फिर कोई क्लोज्ड हो गए हो, या कोई लार्ज डिपॉजिट या लार्ज विड्रॉन किसी मंथ में बहुत ज्यादा। देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए, उसके प्रोविजंस यू हैव टू चेक कि कोई किस टाइप की ट्रांजेक्शन आ रही है, कहाँ से रूट होके आ रही है। देन डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था डेबिट बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट, सेम थिंग डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट अगर कोई है तो उसको भी आपको नेट ऑफ नहीं करना, आपको उसको अलग से एडवांसेस में शो करना है, एंड मोर देन 90 डेज है उसकी डिटेल चेक करके क्या पर्पस है, देन गो फॉर द एनपीए। तो 90 डेज वाला तो मैंने आपको बता दिया। देन 10 लाख से अबोव जो ट्रांजेक्शन है उसको आपने रिपोर्ट करनी है, देन उसको बैंक्स को रिपोर्ट करनी है टू द हायर अथॉरिटी। देन कोई चार्जेस, ये सेविंग में भी ध्यान कर लेना या फिर करंट अकाउंट में कोई चार्जेस अगर कोई रिवर्सल किया है बैंक ने, तो क्या ऑथराइजेशन है, किसने ऑथराइज किया है, बिकॉज दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इनकम रेवेन्यू लीकेज। देन जो ये करंट अकाउंट मैंने आपको एक बताया है, जो आरबीआई का सर्कुलर था रिगार्डिंग द कंसोलिडेटेड सर्कुलर नो ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट सीसीओडी अकाउंट्स, तो उसमें यू हैव टू चेक दिस सर्कुलर कि अगर कोई आपके पास सीसी अकाउंट ओपन करवाने के लिए आते हैं तो उससे आपने अंडरटेकिंग देनी है कि आपकी कितना एक्सपोजर चल रहा है, किस बैंक से चल रहा है, 5 करोड़ से अबव है या नहीं है, तो ऑल डिटेल्स यू हैव टू चेक। देन टर्म फिक्स डिपॉजिट एफसीएनआर आर द एनआरई अकाउंट, तो जितने भी आपके टर्म डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 7 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए, तो इन दैट केस फर्स्ट सेम थिंग यू हैव टू आस्क टू द बैंक मैनेजर प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स कि कितने अकाउंट्स आपने ओपन करे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, कितने क्लोज हुए हैं। देन उसका आप टेस्ट चेक बेसिस पे आप उसका केवाईसी कर सकते हैं। तो और अगर कोई टर्म डिपॉजिट राउंड फिगर में नहीं है, जैसे किसी ने करा दिया मेरा 5,005 रुपीज का कर दो जी मेरा एफडी, तो उसका रीजन चेक करो, पूरी डिटेल में चेक करो। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू द एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स, जो आपके एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स, उसके लिए आपको जैसे कई बार दिस इज फॉर द नॉन रेजिडेंट्स, तो ऑटो रिन्यूअल हो रहा है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स हो रहा है, तो यू हैव टू चेक कि वेदर द बैंक जो ब्रांच है आपने उन्होंने पूरे करंट, जो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो जितने भी आपके कॉपीज हैं उसकी पासपोर्ट्स की, वीजा की, आपने वो ऑब्टेन कर ली है या नहीं करी। इवन आस्क फॉर द ऑडिट ट्रेल, उस केस में आप ऑडिट ट्रेल भी चेक कर सकते हो, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल सर्कुलर है दैट यू कैन चेक। एंड देन रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट, आरडी अकाउंट, इसमें एक और भी था आपके कुछ जो मेच्योर्ड या ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स हैं, जो हम जिसको हम कहते हैं टू बी क्लासेस एज द डिमांड डिपॉजिट्स। in that case interest rate on renewal of such matured overdue deposit should be verified with the reference of prevailing interest rate for the period renewal, तो उसको आपने चेक करना है कि रिन्यूएबल हुआ है या नहीं हुआ। देन रेकरिंग डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स डिफरेंट फॉर द टर्म डिपॉजिट्स, तो रेकरिंग डिपॉजिट्स में ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही अमाउंट है, इसमें कि जैसे आपकी एक मंथली स्कीम्स है कि आप पर मंथ कुछ डिपॉजिट्स करवा रहे हो बैंक के अंदर, और स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट लाइक फॉर 5,000 पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो रेकरिंग डिपॉजिट्स उसमें, तो उसके अंदर इवन बैंक समटाइम चार्ज द पेनल्टी के, अगर नहीं करते तो समटाइम बैंक विल चार्ज यू। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी फिक्स इंस्टॉलमेंट आरडी की है तो उस बेसिस पे है। तो इसमें भी सेम आपको चेक करना है कि कितने न्यू अकाउंट्स ओपन हुए ड्यूरिंग द ईयर, फिर केवाईसी आप टेस्ट चेक बेसिस पे कर सकते हो, करंट ऑडिट में तो आपको 100% चेक करनी है। देन सेम थिंग कि अगर किसी मंथ में अनयूजुअल ट्रेंड है, बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं या बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, क्या उसका इशू है, बहुत ज्यादा कैश कोई डिपॉजिट करवा रहा है या विड्रॉ करवा रहा है। देन अगर कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकरिंग डिपॉजिट में पर मंथ इंस्टॉलमेंट जैसे आपने डिपॉजिट करने हैं, तो अगर आपने किसी को डिलेड है तो उसके ऊपर क्या पेनल चार्जेस या क्या इंटरेस्ट है। देन
अगर किसी ने प्री मेच्योर विड्रॉ करवाया है, कि अगर उसी एफडी में भी आप चेक कर सकते हो कि प्री मेच्योर एफडी अगर वो हो रही है, तो उसमें ऊपर क्या पेनल्टीज हैं, सेम थिंग यहाँ भी है कि आप कितनी पेनल्टी लगा रहे हो। उसके बाद है डोरमेट अकाउंट। तो ये जो मैंने आपको बताया है, जितने भी एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट या टर्म डिपॉजिट, एफडी डिपॉजिट, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। इसको अगर आपने डिटेल में डिस्कस करना है तो और भी बहुत कुछ है चेक करने को। देन डोरमेट अकाउंट, डोरमेट अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोरमेट अकाउंट मतलब जिसको हम इनएक्टिव या इनऑपरेटिव अकाउंट्स भी कहते हैं, जो ऑपरेशन में नहीं है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस भी क्या कहती है, इज सेविंग एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव डोरमेट if there are no transaction in the account for a period of 2 years। तो इसमें जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, इसमें बोथ टाइप की ट्रांजेक्शन्स हैं, कि जब ये नहीं कि उसमें डेबिट ट्रांजेक्शन्स नहीं है या क्रेडिट नहीं है, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नोट देयर, देन ओनली इट्स कंसिडर्ड द डोरमेंट अकाउंट। और अगर बैंक इंटरेस्ट, अगर डोरमेंट अकाउंट है, इनऑपरेटिव है, अमाउंट्स नहीं है या बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है, तो उसको आपने कंसिडर नहीं करना। इवन थर्ड पार्टी के अगर हो रहे हैं देन इट्स कैन बी कंसिडर, बट अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो दैट्स कॉल्ड द डोरमेंट अकाउंट। तो डोरमेंट अकाउंट के लिए जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसको आपने बहुत केयरफुली चेक करना है। यू कैन आस्क द डिटेल, लास्ट ईयर की क्या डिटेल थी डोरमेंट अकाउंट की, करंट ईयर की क्या डिटेल्स है, देन यू हैव टू कंपेयर बोथ, कि आपने लास्ट ईयर में कितने थे, अब कितने हैं, उसमें से जो जो अकाउंट ऑपरेटिव हो चुके हैं उसकी आपने डिटेल डिस्कशन करनी है। कि उसके लिए ऑपरेशन के लिए अगेन बैंक हैज आस्क्ड फॉर द केवाईसी, उन्होंने बैंक ने केवाईसी चेक करे या नहीं करे, एंड उसमें कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस तो नहीं है। देन जो डोरमेंट अकाउंट्स के जो स्पेसिफिक सिग्नेचर्स हैं, दैट शुड बी सेपरेटली अंडर द ज्वाइंट कस्टडी ऑफ द मैनेजर या ऑफिसर्स है। और जितने भी कैश विड्रॉ या डेबिट्स हैं डोरमेंट अकाउंट्स में, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द ब्रांच इंचार्ज। एंड देन जो चार्जेस हैं वो प्रॉपरली लेवी हो रहे हैं मिनिमम बैलेंस के ऊपर, या चेकबुक इशू, स्टॉक पेमेंट्स के ऊपर डोरमेंट अकाउंट में चार्ज कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसको आप चेक कर सकते हो। थोड़े ये अकाउंट है तो आप डिटेल में चेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक इट ऑन द टेस्ट चेक बेसिस स्टैट्यूट ऑडिट में। एंड देन जो आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से अगर 10 ईयर से अबव है आपके कोई डोरमेंट अकाउंट में कोई अमाउंट्स, तो उसको आपने डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में आपको ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर हो गए या नहीं हुए। देन इंटरेस्ट एंड टीडीएस, जो आपका इंटरेस्ट एंड टीडीएस है ऑन द डिपॉजिट्स पार्ट। तो रेवेन्यू लीकेज का सिर्फ ये नहीं मतलब कि आपका इनकम या रेवेन्यू लीकेज हो गया, हो सकता है आपने एक्सपेंडिचर भी डबल कर दिया, इंटरेस्ट आप हाई रेट से प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू लीकेज ओवर बुक ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की, सेविंग बैंक के ऊपर या टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर, तो आपको चेक करने हैं फ्रॉम द मास्टर डाटा, एंड आल्सो आस्क फॉर द ऑडिट ट्रेल, कि जैसे कोई आरबीआई ने रेट्स वगैरह कम किए या ज्यादा किए या बैंक्स की क्या पॉलिसी आई, तो यू हैव टू आस्क फॉर द ऑडिट ट्रेल एंड चेक ऑन द टेस्ट बेसिस। एंड कोई रिवर्सल है इनटू द इंटरेस्ट, देन ask for the bank manager for the authorization, कि किसने authorize किया है, whether that person has the power or not। and then आरबीआई के जो norms हैं for opening the accounts of the non resident and their operation, वो fulfill हो रहे हैं या नहीं हो रहे। then interest on term deposit matured and remaining unpaid will attract saving bank rate of interest in case of auto renewal facility is not available, कि अगर किसी ने auto renewal facility नहीं ली तो उसके ऊपर सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा। देन टीडीएस की इंटरेस्ट जो है नेट ऑफ टीडीएस है। और टीडीएस में क्या करना है, वैसे तो आजकल टीडीएस सारा एक्चुअल लेवल पे है, बट यू हैव टू चेक कि किसी कस्टमर ने 15G या 15H डिपॉजिट कर रहे हैं विद मतलब नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस या लेस रेट ऑफ टीडीएस, उसके अकाउंट्स में आप टेस्ट चेक बेसिस पे चेक कर सकते हो कि कितना उसमें इंटरेस्ट डिपॉजिट है। हो सकता है किसी ने फॉर्म तो सबमिट कर दी हो बट उसके इतनी सारी एफडीज हो, तो इतना 5 लाख से वो इंटरेस्ट है, देन बैंक हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। देन जो आपका एक सीबीडीटी का सर्कुलर है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन द एक्रूवल इन द कोर बैंक, दैट यू कैन चेक। तो दिस इज रिगार्डिंग द टीडीएस। देन रिपोर्टिंग इन द लफार, आई टोल्ड यू लफार के लिए आपको डिपॉजिट्स जो आपकी बैलेंस शीट आइटम्स हैं लाइबिलिटीज में, दैट यू हैव टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट करना है कि जो पॉइंट है, the bank have a system, does the bank have a system of identification of dormant or the inoperative accounts and internal control in regards to the operation in such account। मैंने अभी हमने डिस्कस किया डोरमेंट अकाउंट, तो लफार में यू हैव टू मेंशन
सिर्फ यस नो से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू मेंशन कि वेदर देयर इज सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन. एंड देन इन केस जो आपने एग्जामिन करे हैं, वेदर यू केम अक्रॉस वेदर द गाइडलाइंस लेड डाउन इन दिस रिगार्ड हैज नॉट बीन फॉलोड. जो भी पीछे हमने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है, मतलब डिस्कस करी है डोरमेंट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के ऊपर, तो वेदर बैंक्स आर फॉलोइंग और नोट, अगर नहीं है तो उसकी आपको डिटेल मेंशन करनी है इनटू द लफार. देन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो 31 मार्च के बाद है, एंड टिल द डेट ऑफ ऑडिट, इफ देयर आर सम अनयूजुअल लार्ज मूवमेंट, कि बहुत ज्यादा कुछ डिपॉजिट्स हैं या कुछ इंक्रीज है, विड्रॉन है, तो उसकी आपको डिटेल मेंशन करनी है, उसके ऊपर भी आपको कमेंट्स करने हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज जो अभी हमने डिस्कस किया था एफसीएनआर के ऊपर, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स एफसीएनआर के ऊपर, कि बैंक जो मैनेजर है या बैंक ब्रांच है, वेदर सेटिस्फाई देमसेल्व्स, जो उनका नॉन रेजिडेंट स्टेटस है वो सेम टू सेम है या स्टेटस चेंज हो गया, तो उसके लिए यू कैन आस्क फॉर द ओरिजिनल रिसीव्ड सॉफ्ट कॉपी, एंड आल्सो आस्क फॉर द कि कितने रिन्यू करे एफसीएनआर बी के, कितने कितने रिन्यू हुए, उसको आप चेक कर सकते हो, सारी सारी डिटेल्स और डिटेल भी यू कैन आस्क आस्क फॉर द ओरिजिनल रिसीव्ड सॉफ्ट कॉपीज वगैरह जो बैंक के पास है. एंड देन इज द बैंक कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन ऑफ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जो मैं भी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो मिनिमम बैलेंस है कि उसके ऊपर कोई चार्जेस है, वेदर and levy the charges on maintenance of minimum balance in individual saving accounts. उसमें जो आरबीआई का सर्कुलर्स है नवंबर 2014 का, वो बैंक फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि जो चार्जेस है उसके लिए आपको 30 डेज का नोटिस भेज रहे हैं, बैंक नहीं भेज रहा, या फिर जो चार्जेस है वो प्रपोर्शनेट लगा रहे हैं नहीं लगा रहा, तो दैट यू हैव टू चेक एंड रिपोर्ट इनटू द लफार. सो दिस इज रिगार्डिंग द ऑडिट वेरिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स. सो आई थिंक नंदिता जी, जो आपकी आज एक डिस्कशन था कि मोस्टली पीपल डिस्कस अबाउट द ऑडिट ऑफ एडवांसेस, बट सम टाइम हम लोग डिस्कस नहीं करते या चेक नहीं करते डिपॉजिट्स के ऊपर. तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द audit verification of the deposits. So even if you have any further query, then we will discuss. Otherwise, we'll move on to another video. तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. No, sir, thank you so much for such a wonderful presentation, and I hope that it is very beneficial for our all the users. It is my request that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. Thank you so much for joining. Thank you very much. Bye bye. Take care.